Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you're all fine and stay at home and also preparing your exams, upcoming exams. So this is your lecture number 18, class 7, subject English. Today we will discuss future continuous. Either they have active voice, passive voice, yes or no. कुछ लोग कहते हैं कि इसके फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के पैसिव वॉइस नहीं होते, ये कंफ्यूज करता है. So I will try to solve it. So let's start. First we will recall the future continuous tense. What is future continuous tense? Will be, shall be plus ing form. We use for continuous ing form and will be, shall be helping verbs of the future continuous. It means that the action will be happening in the future but not completed. Like सबा कराची जा रही होगी. सबा will be going to Karachi. Will be. एंड शैल भी किसके साथ लगता है? आई और वी के साथ. तो यहाँ पे सबा है तो इसके साथ हमने क्या लगाया? विल बी. सबा कराची जा रही होगी. सबा विल बी गोइंग टू कराची. दैट इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूस. द क्वेश्चन इज वाई एंड वाई नॉट we cannot make active voice or passive voice. We cannot make the passive voice of future continuous and perfect continuous tense. So here are some books which I have got for you. So student, have a look on it. Future continuous tense. Dear student, the active voice of future continuous tense cannot be changed into passive voice. Why? The question is why we cannot change the future continuous into passive voice if there are active voice. This is the grammar book, grammar English book for class 7. This is grammar composition of class 6. Look, there is future indefinite, active voice, passive voice and future perfect. Where is future continuous? There is no any evidence for it. So student, there are many books that I opened and see in it that we cannot, and the statement is that we cannot change the future continuous tense into passive voice. What is the reason behind it? So students, have a look on it. We use will be plus first form of verb and ing form. ठीक है, ing form हम यूज़ करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के लिए. जैसे ये लिखा हुआ है, द गर्ल विल बी क्लिकिंग सेल्फीज, कि लड़की सेल्फीज ले रही होगी. गर्ल विल बी क्लिकिंग सेल्फीज. गर्ल्स, द गर्ल, गर्ल्स, गर्ल्स, यानी कि एक सेंटेंस से सिंगुलर प्लूरल बना दिए. अब जहाँ पे पैसिव वॉइस की बारी आई तो उन्होंने क्या कहा है? पैसिव वॉइस इज नॉट एप्लीकेबल इन फ्यूचर कॉन्टिन्यूस. व्हाई? द रीज़न मोस्टली ग्रामेटिस्ट गिव अस दैट देयर इज ऑलरेडी बी. सो जहाँ पे बी और बीन आ जाए वहाँ पे ज़रूरी नहीं होता, एप्लीकेबल नहीं होती पैसिव वॉइस बनाना. क्यों? क्योंकि आगे हमने उसको कॉन्टिन्यूस भी शो करना है और उसके बाद हमने उसकी थर्ड फॉर्म भी लगानी है. इस तरह ही होता है ना कि पैसिव वॉइस का रूल है कि वी पुट द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड आल्सो for showing the future continuous we definitely we will use will be or shall be and being. After that we put the third form of verb. So the formation may be this kind of, like first we put the subject, after that we have shall be and will be. After, obviously for the continuous we should have to write being, and after that being we put the third form of verb and then object. इस तरह से फिर हम उसको पैसिव वॉइस बना सकते हैं. ठीक है, इसके लिए ये जो बी है ना, इसकी वजह से ग्रामेटिस्ट कहते हैं कि ऑलरेडी बी उसके अंदर है तो फिर हम बीइंग और थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो वो फिर एप्लीकेबल नहीं होगा. इसलिए कहते हैं कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के पैसिव वॉइस नहीं बनते. लेकिन ग्रामेटिकली अगर हम देखें तो उसकी फॉर्मेशन हम ये बना सकते हैं कि सब्जेक्ट को कन्वर्ट कर दिया ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर दिया सब्जेक्ट में. उसके बाद हमने विल बी, शैल बी फ्यूचर के लिए शो कर दिया. क्यों? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस बनाना है ना. आईएनजी फॉर्म होगी, विल बी, शैल बी होगा तो वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस को शो करेगा. और पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्वियसली हमें क्या चाहिए? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद बाय और उसके बाद ऑब्जेक्ट. लाइक सेम केस विद इट.
सबा कराची जा रही होगी, सबा विल बी गोइंग टू कराची. That is simply future continuous active voice. When I say कराची सबा से जाया जा रहा होगा, तो फिर मुझे इसकी इंग्लिश या ट्रांसलेशन कैसे करनी पड़ेगी? कराची विल बी बीइंग गॉन बाय सबा. अब ये बी भी है, बीइंग भी, और उसके बाद हमने थर्ड फॉर्म भी लगाने, ये ज़रूरी है. बाय सबा, कराची विल बी बीइंग गॉन बाय सबा. सो एप्लीकेबल नहीं लग रहा है ये, यानी कि ये ग्रामेटिकली तो बिल्कुल ठीक जा रहा है कि विल बी हमने प्रायोरिटी पूरी कर दी है. विल बी बीइंग लगा के फ्यूचर कॉन्टिन्यूस को, और आगे हमने थर्ड फॉर्म लगा के बाय लगाया, और उसके बाद हमने सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट. ग्रामेटिकली तो ये ठीक जा रहा है, लेकिन जो ग्रामेटिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि जब यहाँ पे बी ऑलरेडी लगा हुआ है तो फिर हम लोगों को ये मुनासिब भी नहीं है कि हम इसका पैसिव वॉइस बनाएं. Students, let me show you a conversation or argument about it. In future continuous tense and the other perfect progressive tense, there is already be or been in the sentence. कि be और been तो already sentence में होता है. If you change them to passive, you will have to add another being. Obviously जब आपने be पहले ही लगा होता है future continuous में, फिर आप being लगाएंगे तो फिर ही थर्ड फॉर्म लगेगी ना. To them in this process the sentence might lose its audibility. तो वो अपनी audibility को खो देता है. और of course there are some example where these tenses have been used in passive voice. लेकिन ये नहीं कि हम बिल्कुल ही नहीं बनाएंगे. हम लोगों को फ्यूचर कॉन्टिन्यूस बना सकते हैं. कुछ जगहों पर ये एज अ पैसिव वॉइस भी यूज होता है. बाय द एंड ऑफ दिस ईयर द ब्रिज विल हैव बीन बीइंग बिल्ड फॉर 6 years. ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है डू यू नो हैव बीन और बीइंग वॉच एवर सिंस यू एंटर्ड द रूम. When the doer of the action is not certain, the verb requires a future continuous perfect continuous tense. The passive can be used. Students, here are some examples. किताब उसके ज़रिए से ख़रीदी जा रही होगी. Book will be being bought by him. यानी कि ये एप्लीकेबल है बच्चों. इसका ये मतलब नहीं कि हम बिल्कुल बिना सेंटेंस बनाए, हमारे पास पूरा फॉर्मेशन है तो फिर हम क्यों नहीं बना सकते. लाइक सब्जेक्ट विल बी शैल बी, आगे बीइंग लगाया कॉन्टिन्यूस शो करने के लिए. फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब है ना ये विल बी शैल बी प्लस आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद हमने थर्ड फॉर्म लगानी है बाय, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देना है. तो इसी तरह एप्लीकेबल है ये, और ये हम बना सकते हैं. जैसे परिंदा मुझसे नहीं उड़ाया जा रहा होगा. बर्ड विल नॉट बी बीइंग फ्लोन बाय मी. पहले हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को चेंज किया, उसके बाद हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के लिए क्या बनाया, विल बी एंड बीइंग, और ये नेगेटिव है इसलिए हमने विल नॉट बी बीइंग लगाया. और थर्ड फॉर्म इसकी उड़ाने की फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लोन, फ्लाइंग, तो फ्लोन आ जाएगा थर्ड फॉर्म. फिर बाय मी, ठीक है. या फिर इसका जो दूसरा होगा वो होगा आई शैल, या आई शैल नॉट बी flying the bird. तो bird will not be being flown by me. That is applicable. In some sentences we can make passive voice future continuous. Okay, so there is the formation. First we change the subject to object and object as a subject, and after that we will use will be and shall be according to the subject, and after that being to show that it is continuous, future continuous, and after that we put the third form of verb and by an object. So there are the examples. Like क्यों परिंदा मुझसे नहीं उड़ाया जा रहा होगा. Why will bird not be being flown by me. परिंदा मुझसे उड़ाया जा रहा होगा. Bird will be being flown by me. That is affirmative, negative, interrogative, W's question. So there are the examples. It doesn't mean that it is not applicable. It is applicable. We have a proper formation for it. Okay, students. So we can make easily future continuous tense into active voice and passive voice. There is the example and there is the formation. Like Sabah will be going to Karachi. Sabah कराची जा रही होगी. कराची सबा से जाया जा रहा होगा. कराची will be being gone by Sabah. That is the example, that is the formation.
Now I have told you about the formation. It's up to you to write any 5 active wise and passive wise of future continuous tense. फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के कोई से आपने 5 एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज बनाने हैं अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेशन. सब्जेक्ट, विल बी, शैल बी, बीइंग, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बाय एन ऑब्जेक्ट. अल्लाह हाफिज़.